Hi, Namaskar, Adab. This is Rakesh Om Prakash Mehra, and you're watching Bollywood Hungama. Okay, and you convinced Gulzar Saab to write, I think, a script after like ages. In fact, he has not written a script in a long time somewhere. Yeah, almost So 15 years. 15 years. So how did you manage to do that? My very simple question कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? He understood the fact that I'm looking for something, and he liked it. That I want to tell a love story, which is not the normal love story as it plays out. There's got very deep characters, intense characters, very strong characters. So the story is character driven, not just plot driven. That and to paint a world of folklore, to make a musical. So this is my attempt at an Indian musical, not in the way the grammar of Bollywood is कि कोई भी नाचने और गाने लगता है. I'm not saying it in a wrong way, but I'm saying वो तो एक चीज़ें हैं ही. तो क्या हम कुछ एक ऐसा म्यूजिकल इन्वेंट कर सकते हैं जिसमें हमारी जो इतना रिच कल्चर है म्यूज़िक का और डांसेस का और द इंडियन बैले, अगर मैं कहूँ स्टोरी टेलिंग का, फोक थिएटर का, क्या हम ऐसा कुछ चीज़ सिनेमा में क्रिएट कर सकते हैं जो ये तीनों चीज़ें आके मिलें एक दूसरे से और लोगों को एंटरटेन कर पाएँ और हमें कहानी बता पाएँ और उसमें सबको बहुत मज़ा आए और अच्छा भी लगे. Absolutely. And as I said in the beginning, that very few filmmakers, they take the road less traveled, and Mr. Mehra is surely one of them. Now, sir, there will be this question that from the teaser, it seems like a very opulently mounted film, and in terms of you're having Pavel Tillas, who's done the camera work, I think is looking outstanding. And even apart from that, from whatever I've read, you've got like a Ferrari, which is like a very rare Ferrari, which is not available in India either. So you've spent quite a bit of in terms of the production value of the movie. But you're having two newcomers, rank newcomers. One is Harshvardhan and the another one is Sayami Kher. So how confident are you of these two young talents that you've come up with a lavishly mounted film with two ranked newcomers? The requirement of the story. Okay, the newcomers. It is not कि मेरे को एक दिन मूड आया कि मैं सिर्फ न्यूकमर्स के साथ काम करूँगा. तो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो नॉर्मली हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं कि ये इसकी कास्टिंग क्या होगी और हम लिखते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कि किसी वजह से विश लिस्ट में ऑप्शन 1 को कहानी अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी, उनके पास डेट्स नहीं है अगले 2 साल तक और हमें पहले बनानी, तो हम ऑप्शन 2 के पास जाएंगे. ऑप्शन 2 को अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाए और ये फिल्म अफोर्ड नहीं करते तो ऑप्शन 3 पे जाएंगे. ऐसे हम हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर एक्टर्स हों, सपोर्ट आर्टिस्ट हों, इसमें नॉर्मली मैं ऐसे करके एक एक्सरसाइज करते हैं. ऑब्वियसली मन तो यही होता है कि जो पहला विश लिस्ट है और जो ऑप्शन 1 है आपकी स्टोरी के लिए वो ही मिले, चाहे उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत रुकना भी पड़े तो रुकना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ फिल्म के लिए अच्छी है वो हम सब के लिए अच्छी है. चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे एक्टर हो. ये हम ऐसे ऑप्शंस हर बार करते थे और कभी भी कुछ परफेक्ट कास्टिंग मिल नहीं रही थी फिल्म के लिए. तो एक दिन मैंने सबको कहा कि मेरे को आइडिया आ गया है और मेरे को कास्ट मिल गई है फिल्म. So everyone was excited in the office. तो सबके साथ बैठे, गुलजार भाई, भारती, राजीव सर, जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने कहा ये है हमारी कास्ट. Bharti is your wife. Bharti is also the producer of the film. Right. She's my boss. Right. Yeah, wife and the boss. She's also the editor. Wives are supposed to be bosses anyways. Not really, but this one is really is. No, mostly At actually. work also she's my boss. Normally वो घर पे boss होते हैं. Right. This is a double whammy. आप सोचो कि ऑफिस के बॉस से छुट्टी लेके जाओ, घर पे भी बॉस, वही बॉस मिलता है आपको. तो ये एक मतलब ब्रेवरी का अवार्ड मेरे लिए रिकमेंड किया गया है. एक नया अवार्ड रख रहे हैं. But she's been extremely supportive of you as well. I've seen it in Chandigarh during before the screening of Bhag Milkha. The backbone of everything. Absolutely. I bounce everything of Bharti and
she is the creative producer on the film. Sure. She works on every department and she's the editor. Editor, right? तो editor का Awarded editor. हाँ, national and internationally जी, she's बिल्कुल. recognized, national awards and film fair and IFA and Right. been to Venice and all that. Correct. तो वो तो है. But coming back to the casting process, so मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा न्यू कमर, ये मेरे 3 choices हैं. जी. And suddenly everybody smiled. Everybody felt कि हाँ ये स्क्रिप्ट की जो डिमांड है वो न्यू कमर है. तो हम सही कर रहे हैं. और फिर हमने हमारी जो एक सर्च शुरू हुई न्यू कमर्स के लिए. एक नहीं, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. मेन लीड तो है ही जो हीरो एंड हीरोइन है, तो उसमें हर्षवर्धन कपूर मिले, संयमी खेर मिली, वो नासिक से हैं, अनुज चौधरी दिल्ली से मिले, अंजलि पाटिल बॉम्बे से मिली. उन्होंने मराठी का कुछ सिनेमा किया था, एक फिल्म में छोटी फिल्म भी की थी, अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा काम किया था. तो उनके लिए भी ये मेन पहली हिंदी बिग जो बोलते हैं. Anjali Patil was in Prakash Jha's movie as well? She was, yes, absolutely. The one on the Maoists. And Yeah, it was. So she's done a tremendous. She's a very good actor. Yeah. Oh yes, she's मतलब She was outstanding in that movie. आप म्यूजियम में उनका काम देखिए. जी, मतलब हम जब वो सेट पे आती थी तो बाकी सब लोग थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं कि मतलब नहीं, at least अभी there is she's a very young master. At a very young age, she's already, you will see the mastery. You know, when you see some people are blessed. So I was blessed to work with an ensemble of newcomers, and each one of them extremely talented. Talent एक चीज़ होती है, दूसरा होता है आप टैलेंट को होन कैसे करते हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं. टैलेंट तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं लोगों को, बट फिर हार्ड वर्क बड़ा काम में आता है उसके बाद. तो सबने मेरे को 18 महीने दिए थे. तो वर्कशॉप्स हुई, दिल्ली गए हम, 3 महीने सब दिल्ली रहे, 3 महीने दिल्ली में वर्कशॉप्स हुई. फिर मेरी एक मित्र हैं साउथ अफ्रीका से, वो थिएटर करती हैं, टीना, वो आई, उन्होंने वर्कशॉप ली, क्योंकि मैं एक्टिंग स्टाइल जो मैं था सब तोड़ना चाहता था कि हम किसी बैगेज में ना बंधे रहें कि ये ऐसे ही होता है. बिल्कुल. आप नया ब्लड आ रहा है तो उनको अपना करना चाहिए. उनको ये नहीं कि फिल्मों में ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही बोलना होता है, ऐसे ही नाचना होता है, ऐसे ही गाना होता है, ये ज़रूरी नहीं था. आई वॉज वेरी लकी दैट इन हर्ष, इन संयमी, इन अनुज, इन अंजलि, आई फाउंड वेरी ऑल्टरनेट थिंकर्स. और इन सब की थिंकिंग एंड ऑफ कोर्स भारती was behind the scenes, and Pavel Delis, the cameraman who came from Poland, तो उनको वैसे ही नहीं था, उनको तो वर्ल्ड सिनेमा का था. उनको looks very good in terms of visually, it's looking one of the best in the world, and he didn't have any set notions of कि बॉलीवुड में क्या होता है. मेरा तो कभी रहा ही नहीं है, मेरे को वो समझ नहीं आती बात एक फॉलो करने वाली, भेड़ चाल वाली, कि इतनी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इतने लकी हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है करोड़ों रुपया खर्च के एक फिल्म बनाने का, फिर आप वही बना के दे दो लोगों को. कम से कम ट्राई करो. आप शायद फेल हो जाएं, शायद पास हों, शायद 50% मार्क आएँ, 50% टाइम आप पास हो जाएं, 50% टाइम आप फेल हो जाएं. आपकी कोशिश यही रहेगी कि अगली बार से जैसे जैसे होता जाए मैं 90% टाइम पास हूँ और 10% टाइम. कभी आप नया ट्राई करेंगे तो श्योरिटी तो कभी होती नहीं. You like taking risks, in fact. It's not a risk. You came up with Rang De It's not a Basante when risk. 5 Bhagat Singh movies had already were coming simultaneously at that point of time. Yeah, it's not Constant. a risk. No, Right. I have to share with you. It's not a risk. It's doing something what you believe in. That's what you believe in. I think a risk is when you do something you don't believe in. That is a bigger risk. कि आप यार दुनिया बोल रही है ये करो तो मैं कर रहा हूँ. ये तो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप खुद ही नहीं बिलीव कर रहे. तो प्लीज़ वो काम मत करो. मेरा तो यही रहता है, जो मैंने सीखा है मास्टर्स से, जिनके मतलब मैंने किसी को असिस्ट तो किया नहीं लाइफ में, बट जिनका काम देख देख के मैं सीखा हूँ, तो वो यही लगता है कि वो अपना कुछ लेके आए थे. अब जब वी शांताराम फिल्म बनाते थे, एस डी बर्मन म्यूज़िक करते थे,
A.R. रहमान म्यूज़िक करते थे, तो उन्होंने ये नहीं कि मेरे से पहले कौन सा म्यूज़िक हिट हो रहा था, वो अपना कुछ लेके आए। जब अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार बने, ये नहीं मैं अपनी तुलना उनसे कर रहा हूँ, बट मैं ये दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे पहले तो एकदम ही नाच गाने वाले चलते थे हीरो, वो तो एकदम विदाउट डांसिंग आए थे, इंटेंस आए थे, गाना भी नहीं गाया उन्होंने पहली 2 फिल्मों में। बिल्कुल। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि जो फाइनली लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, तो लोगों को ये नहीं कि कोई अनोखी चीज़ देखनी है, उनको देखनी है कि आप हमें भेड़ चाल ना दिखाएं, वो भी है एक किस्म का सिनेमा, वो भी हमें मालूम है, हम वो भी कर लेंगे, बट ये आर्ट फॉर्म ऐसी है और कॉमर्स भी इसमें इतना स्ट्रांग है कि आपका यूनिक होना बहुत ज़रूरी है, आपका अपना अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely.